ज्वाइन करने के लिए बोल जल्दी। डेटा कोई एक लिख दे, ज्वाइन फर्स्ट। व्हाट आस्क? एट मतलब 336 and 7। हाइट इज ऑल्सो मूवेबल, यस। हाँ, तो उसको लेके 8, राइट। 336 ऑसिकल्स, मैंडिबल एंड द हायोइड। ठीक है। अरे मेरा क्लास नहीं है क्या अभी? तो मेरा मार्कर कहाँ गया? क्या छो মার্কার গুলো দেয়নি কেন? পেন গুলো দেয়নি? আমার पेन गुलो दिन। मेरा ही तो क्लास है ना कि? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। भूले गए चीज बाबा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स आज करना है ना? चलो चालू करते हैं। तो whenever we are talking of the transmission of nerve impulse, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझना है। सबसे पहली बात तो यह है, एक लाइन है एनसीईआरटी का 319 में, एक लाइन है। वो लाइन, पहला जो सेंटेंस है, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज 317 में फर्स्ट जो सेंटेंस है देखिए, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज एट रेस्टिंग स्टेज, है ना, देयर मेम्ब्रेन आर पोलराइज्ड। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट। सो न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, अगर एजर्शन है ये, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, ये एजर्शन अगर है, इसका रीजन होगा देयर मेम्ब्रेन्स at resting stage, their membrane are in polarized state. At resting stage, their membrane is in the polarized state. Their membrane is in the polarized state. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब जरा देखिए, अब जरा ध्यान से सुनिए कि व्हाट इज द रेस्टिंग स्टेज ऑफ अ न्यूरॉन। रेस्टिंग स्टेज हम लोग उसी को कहते हैं व्हेन द न्यूरॉन इज नॉट वर्किंग, व्हेन द न्यूरॉन इज कंप्लीटली एट रेस्ट, दैट मींस व्हेन द न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, दैट इज कॉल्ड द रेस्टिंग स्टेज, राइट। सो रेस्टिंग स्टेज का मतलब है, रेस्टिंग स्टेट। नाउ
By the term resting state, we mean that the neuron is completely at rest. It is not conducting any impulse. So the neuron is completely at rest and is not conducting any impulse. The neuron is completely at rest and is not conducting any impulse. So this is the resting state of the neuron. Ab its condition mein what is the condition of the neuron at resting state? Now, as you can understand that the resting state is called the polarized state. This resting state is called the polarized state. Why? We will understand. Why we call the resting state a polarized state, that we will understand. So, at resting state, ये समझना है हम लोगों को. अब एक चीज याद रखिएगा, कोई भी न्यूरॉन के बारे में अगर बात करेंगे, in the cell body there is the presence of Nissel's granules. So Nissel's granules are present. Nissel granule का function क्या है? To synthesize proteins. अब ये प्रोटीन को न्यूरॉन तो डिवाइड नहीं करता. Neurons not divide. So what is the use of this protein? No. All neurotransmitters are not proteins. Acetylcholine itself is not a protein. Then what is the use of this protein? These proteins are used in the formation of the protein channels during transmission of nerve impulse. During transmission of nerve impulse, the protein channels are produced. These protein channels are synthesized by the Nissel bodies. Am I clear? So, what are the different kinds of protein channels that are present in a neuron? इसका एक brief ये करते हैं हम लोग. Suppose this is a neuron. And in this neuron, there are different types of protein channels. Let's consider. कितने protein channels होते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, there is one channel which is like this. This channel is called sodium voltage gated channel. This channel is called the sodium voltage gated channel, so VGC. Am I clear? That means this channel will open with specific volt or potential. तभी जाके ये open होगा. Number 2, there is another channel which is like this. So this channel is called, अब कर लेते हैं इसको, potassium voltage gated channel. ठीक? Next, there is another channel which is called the potassium leaky channel. So this channel is called the potassium leaky channel. अब ये potassium leaky channel जो है, it remains open all the time. ये हमेशा खुला रहता है. So it remains open all the time. Remains open all the time. ठीक? That is potassium leaky channel. Clear? Next, let's consider there is another channel which is like this. This is called sodium leaky channel. This is sodium leaky channel. So let's consider this. This is sodium leaky channel. Okay. There is even another channel which is called, in presence of ATP, this channel operates, in which 3 sodium goes out and 2 potassium gets in. Am I clear? So 3 sodium goes out and 2 potassium comes in. So this particular channel, in presence of ATP, operates, in which 3 sodium goes out, 3 Na plus, and 2 potassium enters. This is called sodium potassium ATPase. समझ में आ गया? This is sodium potassium ATPase channel. Clear? ATPase channel. इसको छोड़ के और क्या चैनल्स है? कैल्शियम चैनल्स है, लेकिन हमें इधर नहीं चाहिए कैल्शियम चैनल, सो वी आर नॉट राइटिंग कैल्शियम चैनल्स एज ऑफ नाउ. तो और एक है, जैसे कि देखिए छोटा सा एक बना दिया मैंने. ये चैनल को हम लोग कहते हैं, ये छोटा सा जो चैनल है इसको कहते हैं मैकेनिकली ऑपरेटेड सोडियम चैनल. मैकेनिकली ऑपरेटेड sodium channel. So it's a mechanically operated sodium channel. Am I clear? तो बहुत सारे चैनल्स के बारे में बात करा. सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, मैकेनिकली ऑपरेटेड सोडियम चैनल, पोटेशियम लीकी चैनल which remains open all the time, सोडियम लीकी चैनल एंड सोडियम पोटेशियम एटीपेज. कैल्शियम चैनल्स भी है, कैल्शियम VGC भी है, लेकिन मैंने बनाया नहीं, मुझे नहीं चाहिए इसमें कैल्शियम VGC. That is for neurotransmission across neuromuscular junction.
लेकिन इधर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है नहीं, दिस इज नॉर्मल नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये डन हो गया। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज एट रेस्टिंग स्टेज व्हाट इज द कंडीशन। सो So at resting stage, what is the condition? अब resting stage में देखिए, if I consider this to be a neuron, now in this neuron, this is the axolemma. This is the axolemma, right? And this is the extracellular fluid, and this is the ICF, intracellular fluid. At resting stage, मतलब वो condition that the neuron is not conducting any impulse. ठीक? And in this particular condition, we actually know that in the ECF, in ECF क्या होता है देखिए, Na plus is 150 times than ICF। क्या लिखा, मतलब मैंने लिखा इन ECF Na plus का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 150 गुना ज्यादा है, 150 गुना ज्यादा है देन द ICF। इसका मतलब मैंने ऐसे ही कह दिया कि ECF में भी सोडियम है, ICF में भी सोडियम है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ECF में भी सोडियम है, ICF में भी सोडियम है, लेकिन ECF में सोडियम का परसेंटेज इज 150 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ICF। तो मैं ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ सोडियम Na प्लस इन द ECF आई राइट लाइक दिस, तो सोडियम का अबंडेंस है, राइट, क्लियर। Whereas at resting state in the ICF, है ना, potassium ion is 15 times than ECF। इसका मतलब हमने ये समझा दिया, हाँ, इसका मतलब हमने ये समझा दिया कि ICF, पोटेशियम आयन ICF में भी है, ECF में भी है, लेकिन परसेंटेज ऑफ पोटेशियम आयन इज 15 टाइम्स मोर इन ICF देन ECF। ये क्लियर हो गया हर किसी के लिए? दोनों जगह पे दो है, दोनों ही है, लेकिन परसेंटेज प्रेजेंस अलग अलग है फॉर सोडियम एंड पोटेशियम इन द ECF एंड ICF रेस्पेक्टिवली। एम आई क्लियर? इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आपको समझ में आ गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मार्क एवरीथिंग व्हाट आई एम टेलिंग। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली सुनना, ये रिकॉर्डिंग बाद में भी आप लोग सुनना। तो एनीवे, तो ये बन गया। अब जरा देखिए, हाँ फिलहाल तो यही है। तो इसका मतलब K प्लस का परसेंटेज एंड अबंडेंस इज मोर हियर। ठीक, there is another thing that in the ICF, what else are there other than the K plus? We say that phosphate ions are there, PO4 3 minus is present. At the same time, organic proteins are present. And कुछ जगह पे YouTube videos वगैरह में आप लोग अगर पढ़ोगे, अब देखोगे कि they say that due to the presence of this PO4 3 minus and organic proteins which are negatively charged, the ICF is negatively charged. This is said in those. लेकिन this is an utter nonsense. Why? Because ध्यान से सुनिएगा, when we tell like this, why don't we consider K plus ions का abundance? मैंने ये भी कहा कि Na plus बाहर भी है, अंदर भी है, K plus अंदर भी है, बाहर भी है, तो K plus Na plus का इतना परसेंटेज है, उसके बावजूद PO4 3 minus and organic proteins इतना है कि उसका माइनस हो गया। ये कभी हो सकता है, लेकिन यही हम लोगों को फीड करवाया जाता है और वो गलत है। क्या कहा मैंने, समझ में आया? अगर मुझे प्रूफ करना है कि माइनस होता है ICF एट रेस्टिंग स्टेज, तो हम लोग कह देते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोटीन्स एंड फॉस्फेट की वजह से वो माइनस हो गया। नो, हम लोग ये भी कहते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस की वजह से सोडियम बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, इसके वजह से माइनस अंदर और बाहर पॉजिटिव। ये भी गलत है, क्योंकि सोडियम प्लस तो बाहर भी है, अंदर भी है। K प्लस ज्यादा, K प्लस तो पॉजिटिव है, K प्लस अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो Na प्लस K प्लस दोनों ही ज्यादा अंदर है, उसके बावजूद हम लोग उसको पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसे कह दे? Got my point? The problem. So this is being fed to us, और वो completely गलत है। इसका actual reason that the at resting stage ICF is negative and the ECF is positive, उसका reason है दूसरा। उसका reason rests on one particular concept, the concept of equilibrium potential. There is a top concept called equilibrium potential. What is equilibrium potential? It is the potential at which there is no net movement of ions across the membrane. It is a potential at which there is no net movement of ions across the membrane. That is, the system is in equilibrium.
क्या कहा मैंने? It is the potential at which there is no net movement of ions across the membrane and therefore the system is in equilibrium, and that is what is called equilibrium potential, जिसका value is different for different ions. So what do you mean by the word equilibrium potential? Let's write this: equilibrium potential. The potential at which there is no net movement of ions across the membrane. There is no net movement of ions across the membrane. That means अगर कोई ions का movement across the membrane नहीं है, then we say the system is in equilibrium. Therefore, the system is in equilibrium. ठीक? And इस equilibrium potential का जो value है, the value varies from ion to ion. एक आयन से दूसरे आयन में उसका वैल्यू वेरी करता है. सो द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का जो आयन्स है, हर एक आयन का अलग अलग वैल्यूज होता है ना. सो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का जो वैल्यू है, थैंक यू बेटा, तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का जो वैल्यू है, तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर सोडियम, सो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर सोडियम एंड पोटेशियम, द वैल्यूज आर डिफरेंट. एम आई क्लियर? Equilibrium potential for sodium is plus 65 millivolt. Equilibrium potential for sodium is plus 65 millivolt. And equilibrium potential for potassium is minus 85 millivolt. समझे? Equilibrium potential for sodium is plus 65 millivolt and equilibrium potential for potassium is minus 85 millivolt. और याद रखिए, जो जहां डोमिनेट करेगा, they will try to drag the potential of the region close to its equilibrium potential. क्या कहा मैंने? Those who will dominate, जो जहां dominate करेगा, they will try to drag the potential of the region close to its equilibrium potential. That means if Na plus is dominant in ECF, Na plus will try to drag the potential of ECF close to its equilibrium potential, which is plus 65 millivolt, and therefore ECF becomes positively charged. On the other hand, when K plus का excess है अंदर, so K plus will try to drag the potential of the region close to its equilibrium potential, which is minus 85 millivolt, and therefore at resting stage the ICF is negatively charged. Am I clear with this concept? याद रखिएगा, this is the concept of equilibrium potential in the true sense. Am I clear? आप बोलोगे सर लीकी चैनल तो हमेशा खुला है, तो हमेशा मूव कर रहा है कुछ ना कुछ. My dear students, इस कंडीशन में हम लोग लीकी चैनल को कंसीडर नहीं करते हैं. Am I clear? We do not consider the concept of leaky channel at this point in time. Clear? So at resting stage, what we see, the ECF is positively charged and the ICF is negatively charged. Is it clear? Now, अब देखिए, अगर ये ऐसा है, तो एक न्यूरॉन के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो एक न्यूरॉन में एक लंबा सा न्यूरॉन अगर हम लोग कंसीडर करें, क्यों कंसीडर करा हम लोगों ने इस तरह से लंबा सा न्यूरॉन? बिकॉज वी नीड टू मेंशन द डिफरेंट रीजियंस. जरा देखें हम लोग, इसको हम लोग 3 सेगमेंट में डिवाइड करा. वी डिवाइड इन 3 सेगमेंट्स. सपोज सेगमेंट ए, सेगमेंट बी एंड सेगमेंट सी. नाउ लेट्स कंसीडर दैट इन सेगमेंट ए sodium is more at resting stage. We are talking of the resting stage. So sodium ka excess, so positive charge outside, inside K plus उसके साथ PO4 3 minus, organic protein सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली K plus ही डोमिनेट कर रहा है, so minus. ये क्लियर? एंड यू सी बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव होने के वजह से across the membrane there is a potential difference that has been created. So across the membrane there is a potential difference that has been created. So a PD has been created, right? तो has been created. और ये जो potential difference हो गया, my dear students, this potential difference results in polarity of the membrane. So this results in polarity of the membrane. So results in the polarity of the membrane. Polarity of the membrane.
and therefore we say the resting stage is nothing but the polarized state of the neuron. Therefore we say that the resting stage is nothing but the polarized state of the neuron. और इसीलिए वो सेंटेंस एनसीईआरटी का at resting stage their membrane is in polarized state, that is being justified. Am I clear? So बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव होने के वजह से there is a potential difference that is existing between the two regions across the membrane, and therefore this potential difference results in what? In the formation of a polarized condition of the neuron, and this polarized condition is a resting stage of the neuron. Since at resting stage the polarized condition of the neuron is established, therefore the resting stage is also called the polarized state of the neuron. Am I clear? So the resting stage को हम लोग polarized state कहते हैं इसी के वजह से. तो ये बन गया आपका polarized state of the neuron. कोई दिक्कत नहीं किसी को. Now, in this condition when the neuron is at rest, अब resting state के बाद जरा ध्यान से देखिएगा, there are two conditions that can be availed. There are two conditions that can be availed. ठीक? अब दो कंडीशन जो है, एक कंडीशन में सपोज रेस्टिंग स्टेज का वैल्यू कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली ये जो रेस्टिंग स्टेज और रेस्टिंग स्टेट इसका वैल्यू इज फॉर अ न्यूरॉन इज अप्रोक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट. तो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्टिंग स्टेज इज -70 मिलीवोल्ट. ये हम लोग कंसीडर करते हैं. क्यों? आप पूछोगे क्यों? ये देखिए, रेस्टिंग स्टेट में वैल्यू -70 मिलीवोल्ट, ये किसका पोटेंशियल है, आईसीएफ का या ईसीएफ का? The answer is ICF. और ICF में सर आपने बोला कि K plus dominant है, तो K plus will try to drag the potential close to its equilibrium potential, that is -85 millivolt. तो -85 ना होके -70 तक क्यों गया? क्योंकि कुछ सोडियम तो ऑलरेडी है, सोडियम भी तो है. So that is the reason partially nullify होके that comes down to, boils down to -70 millivolt. Am I clear? Is this clear to everyone? So at resting stage, the potential of the ICF is -70 millivolt. So this is the potential of the ICF. This is the potential of the ICF. Potential of the ICF. So at resting stage, this is the potential of the ICF. Whenever we say -70 millivolt, by that we mean that the potential is of the ICF. Am I clear? अब जरा देखिए, ये रेस्टिंग स्टेज वाला कंडीशन जो है, एनसीईआरटी में एक बहुत शानदार स्टेटमेंट लिखा हुआ है. एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है दैट एट रेस्टिंग स्टेज, माने 317 का जो स्टेटमेंट है उसमें देखिए, रेस्टिंग स्टेज इज फ्रीली परमिएबल टू पोटेशियम आयंस बट नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन. देखिए लिखा है, एट रेस्टिंग स्टेट इट इज फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयन, पोटेशियम आयंस, बट नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस. लिखा है, ध्यान से देखिएगा. इसका मतलब एट रेस्टिंग स्टेज वो स्टेटमेंट क्यों लिखा है? एनसीईआरटी का लाइन, एनसीईआरटी उठाते हैं. एट रेस्टिंग स्टेट द न्यूरॉन इज फ्रीली परमिएबल टू पोटेशियम आयंस बट नियरली impermeable to sodium ions. So freely permeable to potassium ions but nearly impermeable to sodium ions. ये क्यों है? ये क्यों लिखा गया? Freely permeable to potassium ions क्यों? Why? ये अगर assertion है तो इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा due to, since the potassium leaky channels remain open all the time. Since the potassium leaky channels, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, the potassium leaky channels remain open all the time. तो पोटेशियम लीकी चैनल हमेशा खुला रहता है बेटा. तो ये जो पोटेशियम लीकी चैनल आप देख रहे हो, this potassium leaky channel remains open all the time. Therefore एनसीईआरटी में लिखा है it is freely permeable to potassium ions. फिर एनसीईआरटी में लिख रहा है बेटा but nearly impermeable to sodium ions. Why nearly? Sodium leaky channels are there, तो उसमें तो पैसेज कुछ हो रहा है, इसीलिए nearly, but sodium voltage gated channel is completely closed. तो इस पे बात करेंगे, nearly impermeable to sodium ions, इस पे बात करेंगे, इसका रीजन के बारे में बात करेंगे. ठीक, इसका रीजन के बारे में बात करते हैं. अब जरा ध्यान से देखिएगा,
ये क्यों है? देखिए, एट रेस्टिंग स्टेट द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, इसका जो क्या होता है, देखिए सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, इसका देखिए ये ऐसे बंद रहता है, इसका 2 गेट है, ये 2 दरवाजा है इस चैनल का। ऊपर वाला दरवाजा को कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन गेट। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन गेट। और नीचे वाले दरवाजे को हम लोग कहते हैं इनएक्टिवेशन गेट। इनएक्टिवेशन गेट। तो ऊपर वाले दरवाजे को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन गेट, नीचे वाले दरवाजे को कहते हैं इनएक्टिवेशन गेट। एंड रिमेंबर, एट रेस्टिंग स्टेट द एक्टिवेशन गेट इज क्लोज्ड एंड द इनएक्टिवेशन गेट इज ओपन। इसका मतलब अगर इसको कंसीडर करोगे, अगर इसको कंसीडर हम लोग करते हैं, देखिए इधर, इसको हम लोग अगर कंसीडर करते हैं सोडियम VGC, इसका एक्टिवेशन गेट इज बंद, इनएक्टिवेशन गेट इज ओपन, तो बाहर से कुछ आ पाएगा क्या? फ्रॉम आउटसाइड एनीथिंग कैन कम? नो। तो देयर इज नो एंट्री ऑफ सोडियम आयंस, तो इट इज इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। ठीक? So activation gate is closed, inactivation gate is open. This का मतलब impermeable to sodium ion, therefore impermeable to sodium ions through sodium VGC. Sodium VGC से completely impermeable है, but sodium leaky channels are open, therefore allow little passage by movement, very little. इसीलिए the word has been used nearly, therefore the word nearly has been used. So it is therefore nearly, ये जो word use हुआ है इसको मैंने बोल्ड कर दिया। एनसीईआरटी में लिखा है नियरली इंपरमेबल टू सोडियम आयंस। नियरली क्यों? नॉर्मल इंपरमेबल ही है, लेकिन नियरली बिकॉज सोडियम लीकी चैनल्स आर ओपन। क्लियर हो गया? अब ये है रेस्टिंग स्टेज वाला सिचुएशन। एक बार आप लोग हर कोई देख लीजिए रेस्टिंग स्टेज वाला सिचुएशन क्या है, फिर मुझे बताइए, देन आई विल प्रोसीड। एम आई क्लियर? तब तक मैं एसी को थोड़ा चिल कर लूं बिकॉज इट इज इन 32। रिमोट तो डाउन কি তো ভেতরে গেঞ্জি কোথায়? কোনটা ইউনিফর্ম? টি শার্টটা কোথায় গেল? हाँ बोलो। हाँ यस। नहीं, इधर ऑर्गेनिक प्रोटीन्स जो होते हैं, कहां गया? ऑर्गेनिक प्रोटीन्स जो होते हैं इसका साइज बड़ा है, हाउ कैन इट गो आउट? प्रेजेंट ही नहीं है, एक्सोप्लाज्म में होता है। समझ में आया? इसीलिए ऑर्गेनिक प्रोटीन वाला कॉन्सेप्ट को यूज ही नहीं करना है अपन को। एम आई क्लियर? देख लीजिए इसको, ध्यान से देखिए, वॉट एवर आई हैव डन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Which one? Number of K plus leaky channels are much more as compared to Na plus leaky channels. Am I clear? Number of K plus leaky channels are much more than Na plus leaky channels. Sodium leaky channels का नंबर बहुत कम रहता है, बट K plus leaky channels बहुत ज्यादा है। ठीक है? At resting state. How is that helping? मतलब एक्टिवेशन गेट कैसे हैं? If I consider a neuron,
तो एक्टिवेशन एट रेस्टिंग स्टेज अगर बनाते हैं हम लोग, मतलब इस कंडीशन को अगर हम लोग इधर मेंशन करते हैं, जरा देखिए रेस्टिंग स्टेज वाला कंडीशन, तो एक्टिवेशन गेट सोडियम VGC का जो एक्टिवेशन गेट है क्लोज्ड, इनएक्टिवेशन गेट ओपन, तो बाहर से सोडियम कैसे आएगा? क्यों? इनएक्टिवेशन, दोनों गेट ही एक साथ मूव करता है, समझ में? यू अंडरस्टैंड वन थिंग, दोनों गेट है, सपोज ये एक दरवाजा है और वो मेन गेट है, अगर ये दरवाजा खुला हुआ है लेकिन मेन गेट क्लोज है तो कुछ घुस पाएगा बाहर से? नो ना, बस। सिमिलरली ये दरवाजा बंद है, बाहर का गेट खुला हुआ है, तब भी कुछ अंदर घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा ना। सिग्निफिकेंस जो है वो बाद में आपको समझ में आएगा, रुक जा, वो तो है ही, इसीलिए बनाया उधर अलग से बॉक्स बना के। ठीक, इतना तक डन, इतना तक डन, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? प्रोसीड करें। सो व्हाट हैपेंस इज if this is the resting condition of the neuron, if this is the resting condition of the neuron, so the same thing is here, the same thing is here, the same thing is here initially in all the segments. इसीलिए इसको पोलराइज्ड कहते हैं हम लोग, इसको पोलराइज्ड कहते हैं हम लोग, इसको पोलराइज्ड कहते हैं हम लोग। बाहर Na+ का डोमिनेंस है, Na+ का डोमिनेंस है, अंदर K+ का डोमिनेंस है। यही तो सिचुएशन है, बाहर पॉजिटिव चार्ज अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, यही तो है। दिस इज द रेस्टिंग कंडीशन ऑफ द न्यूरॉन, एंड इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन टू थिंग्स कैन हैपन। नंबर वन, a threshold potential can be given, threshold potential can be given, or a sub-threshold potential can be given. क्या कहा मैंने? दो कंडीशन हो सकता है। नंबर वन, a threshold potential can be given, that means a potential of threshold value can be given. Number two, a potential of sub-threshold value can be given. तो पहला क्वेश्चन है, what is a threshold potential? What do you mean by a threshold potential? So I have used a word which is called threshold potential. So I have used a word which is called threshold potential. Okay? What do you mean by a threshold potential, my dear? Suppose this is the neuron. Suppose I have been given a threshold stimulus. Right? ध्यान से देख, the neuron is at rest and we have been given a threshold stimulus. The minimum potential which is required for exciting the neuron, that is a threshold stimulus. Am I clear? So what is threshold potential? It is the minimum potential required to excite the neuron. What is action potential? It is the minimum potential required by neuron to produce an action. So this is an action. That is action potential. But the minimum potential required by neuron to get excited, that is threshold potential. दोनों में difference है. Am I clear? So what is a threshold potential? The minimum potential required by a neuron to get excited. Am I clear? नहीं, जरूरी है। अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया तब जो चेंजेस होंगे, so that will result in production of action potential. होगा ही होगा। अगर वो एक्साइट करा न्यूरॉन को तो एक्शन करेगा वो न्यूरॉन। एक्साइट होने के बाद एक्शन नहीं करा, ऐसा नहीं होगा। Am I clear? अगर एक्सोलेमा डैमेज्ड है तो वो अलग चीज है। अगर एक्सोलेमा डैमेज्ड है तो अलग चीज है, लेकिन इन अ नॉर्मल सिनेरियो disease condition is different. In a normal scenario, if the neuron is excited by a threshold potential, it has to produce an action. Now, for a neuron of whose resting potential is minus 70 millivolt, uska threshold potential will be minus 55 millivolt. So, जिसका minus 70 millivolt resting membrane potential है, उसका threshold potential का normal value is approximately minus 55 millivolt. तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, उसका वैल्यू है minus 55 मिलीवोल्ट। ठीक, क्लियर? नाउ एनी पोटेंशियल बिलो अ थ्रेशोल्ड वैल्यू will not excite the neuron, right? So that can be called a sub threshold stimulus. मतलब अगर minus 60 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल दिया तो कुछ नहीं होने वाला,
it will not be able to excite the neuron. So it can be called a sub-threshold stimulus, right? So I told that a neuron at rest can be given two stimulus. Number one, threshold stimulus. Number B, sub-threshold stimulus. So there are two conditions. Number B is sub-threshold stimulus. So if I give a neuron a stimulus of sub-threshold value, then this sub-threshold value will not be able to excite the neuron. Will not be able to excite the neuron. तो ये sub-threshold stimulus neuron को excite नहीं करेगा. So the neuron will not be excited. The neuron will not be excited. But, अच्छा ये क्यों? Because every neuron follows a principle which is called all or none law. Because every neuron follows a principle which is called all or none law. What does it say? That unless and until a potential of threshold value is given to a neuron, it will not get excited. That means either the neuron will get fully excited or will not get excited at all. That is all or none law. Mane, if a threshold stimulus is given, the neuron will get excited. Jab tak threshold value nahi aayega, neuron will not get excited. That is all or none law. Am I clear? So it means either the neuron will get excited fully or will not get excited at all. Bujhte balli? So either the neuron will get excited fully because it is based on the principle. Since it is based on the principle of all or none law. All or none law. Either the neuron will get fully excited or will not get excited at all. Either the neuron will get fully excited or not get excited at all. So either the neuron get fully excited or will not get excited at all. That is all or none. Am I clear? इतना तक ठीक है? तो अगर all or none law principle follow है, तो excitement के लिए threshold value ही चाहिए. लेकिन अगर सब threshold value दिया तो excite नहीं हुआ. तो सब threshold value दिया, कुछ नहीं हो रहा है. कुछ नहीं हो रहा है. But if I give a number of sub-threshold value, sub-threshold stimulus at a very short interval, then the neuron will add the stimulus to produce a stimulus of threshold value and get excited. That is called summation. मतलब अगर मैं sub-threshold value, number of sub-threshold value को very short interval में दिया, तो न्यूरॉन का property है, it will add up the sub-threshold stimulus to produce a stimulus of threshold value and get excited. That is called summation. So but if a number of sub-threshold stimuli are given to the neuron at rest, then the neuron will add up the values to produce a stimulus of threshold value and get excited. Could I explain? This is called summation. This principle is called summation. Am I clear? एकदम वेरी शॉर्ट इंटरवल में दिया ना, वेरी शॉर्ट इंटरवल में दिया मैंने. डेफिनेटली रिफ्रैक्टरी अभी तक बात नहीं किया, इसीलिए मैंने नहीं लिखा वो. बट वेरी शॉर्ट इंटरवल मतलब वो उसको कंसीडर कर ही सकते हो आप. तो समेशन में वो ऐड करके खुद बना लेगा थ्रेशोल्ड वैल्यू एंड इट विल गेट एक्साइटेड. समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट. ये हो गया इसका डिस्कशन, सब थ्रेशोल्ड वाला. अब आते हैं नॉर्मल डिस्कशन पे जो है थ्रेशोल्ड वाला. तो थ्रेशोल्ड वाला स्टिमुलस अगर हम लोग देंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, इनिशियली जब रेस्टिंग कंडीशन में था
सपोज आई एम द मेन प्लेयर इज सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, याद रखिएगा, द मेन प्लेयर इज सोडियम VGC. अब जब थ्रेशोल्ड पर, सॉरी, रेस्टिंग कंडीशन है तो एक्टिवेशन गेट इज क्लोज्ड, इनएक्टिवेशन गेट इज ओपन. अब जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल दिया तो धीरे धीरे एक्टिवेशन गेट जो क्लोज था वो ओपन होता रहेगा और जो इनएक्टिवेशन गेट क्लोज था वो ओपन था वो क्लोज होता रहेगा. गॉट माय पॉइंट? सो in this case, when I have given a threshold potential of threshold value that is minus 55 millivolt हमने दिया, so what will happen? तो ये है आपका सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल. ये पहले क्या था? ये बंद था और ये खुला हुआ था. अब देखो ये धीरे धीरे बंद होता, खुलता रहेगा और ये धीरे धीरे बंद होता रहेगा. एंड देयर इज अ टाइम इन विच बोथ आर ओपन. बीच में एक टाइम होगा ना जिसमें दोनों ही खुला रहेगा. क्योंकि ये कंडीशन में देखो, इससे जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल माइनस 55 मिलीवोल्ट दिया गया, देन व्हाट विल हैपन? ये धीरे धीरे ओपन होगा, ये धीरे धीरे ओपन होगा और ये धीरे धीरे क्लोज होगा. सो देयर इज अ टाइम इन विच बोथ आर ओपन. So there is a time in which both are open, and अगर both are open, my dear students, दोनों अगर खुला हुआ है तो उस दौरान there will be huge influx of sodium ion from the ECF to the ICF. So here, segment A, there is huge influx of sodium ions from the ECF to the ICF. Millions and millions of sodium ions come in. और ऑलरेडी अंदर क्या था? K प्लस ऑलरेडी है. सेगमेंट ए को कंसीडर करो, सेगमेंट ए को जो कि पोलराइज था. अब देखो क्या हो रहा है, वो सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ ह्यूज. अब आप बोलिए, ये जो सोडियम का ह्यूज इन्फ्लक्स हुआ तो इसके वजह से लुक एट द आईसीएफ, ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम केम, तो बाहर से पॉजिटिव चार्ज ह्यूजली अंदर आया और ऑलरेडी के प्लस था अंदर. एंड देयरफॉर इसका टेंडेंसी जो कि आईसीएफ नेगेटिव था, उसका टेंडेंसी धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ चला गया, बिकॉज एक्सेसिव सोडियम बाहर से अंदर आया. अब बोलोगे सर ये तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट को भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. नहीं कर सकते. इक्विलिब्रियम पोटेंशियल हम लोग केवल इक्विलिब्रियम कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं. इधर सोडियम VGC हैज ओपन्ड एंड मिलियंस ऑफ सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, तो हाउ विल द इक्विलिब्रियम बी एस्टैब्लिश्ड? So the concept of equilibrium potential will not be applied at any step other than the resting stage. Am I clear? Equilibrium potential का concept किसी भी जगह पे applied नहीं है, because कोई भी जगह equilibrium में नहीं है other than the resting stage. तो केवल resting stage में ही equilibrium potential applied है. Am I clear? चलो, अब इस condition में huge influx of Na+ and that results in a change in polarity of the membrane, or we can say a reversal in the polarity of the membrane. So you see here, बाहर हो गया comparative negativity, अंदर हो गया comparative positivity. समझ में आया? And therefore we can say there is a loss of polarity. जो polarized condition था, ये polarized condition lose हो गया. तो loss of polarity है ना, राइबोस शुगर से ऑक्सीजन हटा दिया, नाम दिया डीऑक्सीराइबोस, तो लॉस ऑफ पोलरिटी हो गया, तो डीपोलराइजेशन. Am I clear? So there is a loss of polarity of the membrane. So loss of polarity, and therefore NCERT लिख रहा है reversal of polarity. Therefore depolarization. Am I clear? So this region gets depolarized. On the other hand, this is again the same. This is again the same. This is again the same. So plus, plus, minus, minus. That means this is polarized, resting condition. This is also polarized, that is the resting condition. Segment B and segment C. So segment B and segment C are in resting condition presently, but segment A has been depolarized. Am I clear? Segment A has been depolarized. अर्जेंट की बोलो.
Segment A got depolarized. Segment B and C are still in polarized condition of the neuron. ये तो क्लियर है हर किसी के लिए, जरा ध्यान दीजिए. So depolarization of segment A, depolarization of segment A, depolarization of segment A will lead to the generation of action potential. तो सेगमेंट ए में जब डीपोलराइजेशन होगा, इट विल लीड टू द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. पहले क्या हुआ? रेस्टिंग स्टेज, फॉलोड बाय थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, फॉलोड बाय डीपोलराइजेशन, फॉलोड बाय एक्शन पोटेंशियल, राइट? एंड व्हाट इज एन एक्शन पोटेंशियल? हाउ डू यू डिफाइन एक्शन पोटेंशियल? सो एक्शन पोटेंशियल, the minimum potential required by a neuron to produce an action, है ना? It is the minimum potential required by a neuron to produce an action, and the probable value of this action potential can be anywhere between plus 10 to plus 45 millivolt. Let's consider it is plus 45 millivolt. So let's consider approximate value of this action potential is plus 45 millivolt. ठीक? Am I clear? कोई doubts किसी को? Now, so it leads to the generation of action potential. अच्छी बात है. तो action potential का और एक नाम है nerve impulse. NCERT में लिखा है. The other name of action potential is nerve impulse. पेज नंबर 318 में लिखा हुआ है. आपको पता है? तो एक्शन पोटेंशियल का और एक नाम है नर्व इंपल्स. तो लेट मी टेल यू हाउ द एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट्स फ्रॉम ए टू बी. सी हियर हाउ द एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट्स फ्रॉम सेगमेंट ए टू सेगमेंट बी, माय डियर स्टूडेंट्स. जरा देखिए ध्यान से. हाउ द एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट्स फ्रॉम सेगमेंट ए टू सेगमेंट बी. लुक हियर, एक्शन पोटेंशियल इनसाइड द मेम्ब्रेन पास करता है फ्रॉम सेगमेंट ए टू सेगमेंट बी. And outside the membrane, electric current will flow from B to A. Am I clear? Action NCERT में लिखा है. Action potential will travel from A to B inside the membrane, whereas electric current will flow from B to A outside the membrane to complete the circuit. देखो लिखा है. Page number 318. अब देखिए, the statement is given. मिला आपको? ठीक? तो क्लियर हो गया. तो मतलब सबसे पहले आता है रेस्टिंग कंडीशन ऑफ द न्यूरॉन, फॉलोड बाय थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, फॉलोड बाय डीपोलराइजेशन, फॉलोड बाय जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. एम आई क्लियर? एंड रिमेंबर वन थिंग, एक्शन पोटेंशियल जो हो रहा है, दिस एक्शन पोटेंशियल विल मूव, और नर्व इंपल्स, एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स विल मूव फ्रॉम ए टू बी below the membrane and inner side of the membrane, and the electric current will move from B to A on the outer side of the membrane to complete the circuit. Exactly यही लाइन पे लिखा है. Exactly यही लाइन कॉपी पेस्टेड है. Am I clear with this, my dear? अब देखते हैं. अब देखिए, तो दिस रीजन में एक्शन पोटेंशियल डेवलप करा. अब एक्शन पोटेंशियल विल लीड टू टू थिंग्स. Generation of action potential will lead to two things. ভালো করে concentrate কর. Generation of action potential will lead to two things. So, generation of action potential will lead to two things. Number one, opening of potassium voltage gated channel in segment A. And number two, opening of sodium voltage gated channel in segment B. क्या कहा मैंने? जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन विल लीड टू टू इवेंट्स. नंबर वन, opening of potassium voltage gated channel in segment A, and number two, opening of sodium voltage gated channel in segment B. Am I clear? Kenneth, clear? Very very important. तो इसका इफेक्ट देखिए. तो इसका इफेक्ट हम लोग देखते हैं माय डियर. तो लुक एट दिस.
ABC, opening up potassium voltage gated channel in segment A. Clear? That means जैसे ही potassium VGC open होगा segment A में, there'll be a flux of thousands and thousands of K plus बाहर. और इस कंडीशन से कंपेयर कीजिए, उस कंडीशन से कंपेयर कीजिए सेगमेंट ए, अंदर तो ऑलरेडी Na प्लस आके बैठा हुआ है, बाहर से अंदर Na प्लस तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन अब K प्लस बाहर जा रहा है. देखा, दूसरे चैनल से K प्लस बाहर जा रहा है. देखो, जब ये हो रहा तो अंदर क्या था? Na प्लस भी था, K प्लस भी था. इस कंडीशन में इधर क्या था? इधर क्या था? केवल K प्लस था, केवल K प्लस था. इधर क्या था? केवल K प्लस, बाहर Na प्लस, बाहर Na प्लस. इस कंडीशन में बाहर प्लस, अंदर माइनस. इस कंडीशन में बाहर माइनस, अंदर प्लस. यही तो सिचुएशन था. अब इस सेगमेंट ए को इससे कंपेयर करो. नाउ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ K प्लस इज गोइंग आउट, K प्लस आर गोइंग आउट, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ K प्लस आर गोइंग आउट. पहले दिस विल रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंपैरेटिव. ये जो पॉजिटिविटी था अंदर, अब ये पॉजिटिविटी K प्लस बाहर चला गया बहुत सारे, तो कंपैरेटिवली एक नेगेटिविटी डेवलप करेगा अंदर, क्योंकि K प्लस हैज मूव्ड आउट, है ना, एंड बाहर कंपैरेटिव पॉजिटिविटी डेवलप करेगा. देखा आपने, राइट? अब सेगमेंट ए बी देखिए. आई टोल्ड ओपनिंग ऑफ सोडियम VGC इन सेगमेंट बी. तो सोडियम VGC खुल रहा है सेगमेंट बी में, इसका मतलब वो जो उधर बनाया था उसी वही चीज आएगा. एंड देयर इज इनफ्लक्स ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ Na प्लस, अंदर ऑलरेडी K प्लस है. तो सेगमेंट बी में क्या होगा? अंदर हो जाएगा कंपैरेटिवली पॉजिटिविटी, बाहर नेगेटिव, जैसे उधर बना था सेगमेंट ए में, वो अब बी में दिखा. एंड सी में क्या होगा? जो ओरिजिनल कंडीशन था, रेस्टिंग कंडीशन, बाहर पॉजिटिव K प्लस था, अंदर नेगेटिव. तो ये कंडीशन अंदर से बाहर K प्लस गया, ये कंडीशन Na प्लस आया. सो दिस इज द डीपोलराइज्ड कंडीशन. सेगमेंट बी में क्या है? डीपोलराइज्ड. सेगमेंट ए में क्या है? पोलराइज्ड, रेस्टिंग कंडीशन. बट सेगमेंट ए को देखिए, वाई रिपोलराइज्ड? इसका नाम रिपोलराइजेशन क्यों है? कहां से रेस्टोर हुआ पोलरिटी? सेगमेंट ए और सी को देखिए, इन टर्म्स ऑफ चार्ज यू कैन से दैट अंदर माइनस बाहर प्लस, अंदर माइनस बाहर प्लस, लेकिन आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन आर डिफरेंट. देखो, ऑपोजिट आयन डिस्ट्रीब्यूशन है. ए में बाहर ज्यादा K प्लस हो गया, अंदर ज्यादा Na प्लस हो गया. सी में बाहर ज्यादा Na प्लस है, अंदर ज्यादा K प्लस है. Although the polarity is trying to get restored, charge distributions are same, but the ionic distributions are different. So A and C, in A and C, the charge distributions are same, but the ionic distributions are different. है ना? Charge distributions are same, but the ionic distributions are different. A and C. तो A किस कंडीशन को कहेंगे कि A is an effort. It is an effort of A to get back into the polarized state. So it is called the state of repolarization. है ना? This is called repolarization. Why? Because it is an effort of segment A to get back into the polarized state. लेकिन polarized state हम तभी कह सकते हैं बेटा जब बाहर Na प्लस और अंदर K प्लस होगा. तब तक हम उसको पोलराइज नहीं कह सकते, रेस्टिंग स्टेज नहीं कह सकते. So it's a case of repolarization of the neuron, my dear students. तो ये ट्राई कर रहा है टू गेट बैक द ओरिजिनल रेस्टिंग कंडीशन ऑफ द न्यूरॉन. ठीक, क्लियर हो गया? अब हाउ टू रेस्टोर द आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशंस. रेस्टोरेशन करना है. एनसीईआरटी क्या किया है? एनसीईआरटी इसमें इस स्टेज को ही रेस्टोरेशन कह दिया है, बट आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशंस अभी तक रेस्टिंग स्टेज जैसा नहीं बना. तो उसमें क्या इफेक्ट होगा जरा देखिए. उससे पहले और एक पॉइंट, ये जो K प्लस का बाहर एफ्लक्स हो रहा है,
अगर एक स्टैंडर्ड एफ्लक्स होगा तो दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन. इफ देयर इज एक्सेसिव एफ्लक्स ऑफ K प्लस, दैट इज कॉल्ड हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन, जहां पे पोटेंशियल नेगेटिव होते होते -80 तक चला जाता है अंदर. इतना ज्यादा K प्लस का बाहर फ्लो होता है. समझ में आया? सो इफ देयर इज एक्सेस, if there is an excess efflux of K plus from the ICF to the ECF, then बाहर excess K plus का efflux अगर होगा, then the stage is called hyperpolarization. इसका जो वैल्यू होता है पोटेंशियल ऑफ ICF इज अप्रोक्सीमेटली -80 मिलीवोल्ट तक चला जाता है. इतना कम हो जाता है अंदर पोटेंशियल, ऑलमोस्ट इट रीचेस -80 मिलीवोल्ट. क्या पूछा? कुछ नहीं होगा, बता देते हैं. वो तो बॉडी का सिस्टम है जो रिपोलराइज ओरिजिनल स्टेट में लाएगा. अगर नहीं ला पाया तब तो दूसरा चीज होगा. नर्व इंपल्स सही से गड़बड़ हो जाएगा, नर्व इंपल्स पूरा. समझ में आया? लेकिन अगर हाइपरपोलराइजेशन कंडीशन हुआ, वेदर इट इज अ केस ऑफ रीपोलराइजेशन और वेदर इट इज अ केस ऑफ हाइपरपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन भी हो सकता है, हाइपरपोलराइजेशन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है. इन दिस केस देख, टू थिंग्स कैन हैपन. इफ दिस हैपेंस देन हाइपरपोलराइजेशन, और अगर ये नहीं होता है तो नॉर्मल रिपोलराइजेशन. इन दोनों केस में रेस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल कंडीशन इज डन बाय द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है बट उसका एक्शन एग्जिबिट नहीं किया है. सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप will come into action to restore the ionic balance. Am I clear? So, अब क्या होगा? अब क्या होगा देखिए. ABC. So, look here. इधर सोडियम पोटेशियम, अंदर सोडियम ज्यादा है, बाहर पोटेशियम ज्यादा है, तो उसको रेस्टोर करना है तो 3 सोडियम बाहर भेजेंगे और 2 पोटेशियम अंदर खींचेंगे. तो देयरफॉर वो रेस्टोरेशन ऑफ द आयोनिक बैलेंस विल बी देयर. सो इन दिस केस अल्टीमेटली बाहर ओरिजिनल पॉजिटिव और नेगेटिव अंदर. और इन दिस केस क्या होगा देख, उधर डिपोलराइजेशन हुआ था ना, तो मतलब एक्शन पोटेंशियल इधर से इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर जाएगा. ठीक है? तो सो इस कंडीशन में अब पोटेशियम VGC खुलेगा, इधर से इधर K प्लस बाहर जाएगा. देखिए ध्यान से, अंदर ऑलरेडी Na प्लस है और इस कंडीशन में सोडियम VGC खुलेगा, सोडियम अंदर आएगा, बाहर अंदर ऑलरेडी K प्लस है. तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर करोगे तो इस कंडीशन में बाहर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, इस कंडीशन में बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव. दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, दिस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन. This is again back to polarized condition. Restoration of the original polarized condition. Whether it is normal repolarization or whether it is hyperpolarization, in दोनों condition में ही sodium potassium ATPase pump will work. Sodium potassium ATPase खुला रहता है हमेशा, लेकिन वो काम तभी करता है जब रेस्टोरेशन करवाना है आयोनिक बैलेंस का. चार्ज बैलेंस के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपेज काम नहीं करता. Remember my dear students, sodium potassium ATPase never work for the charge balance, it always work for the ionic balance. So sodium potassium ATPase pump, इसके बारे में बात करनी है तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है माय डियर स्टूडेंट्स, सोडियम पोटेशियम एटीपेज वर्क्स फॉर the ionic balance, although it remains open throughout.
ऑल्दो इट रिमेन्स ओपन थ्रू आउट, बुझते पेरेছো? ये पूरा खुला रहता है, लेकिन इट वर्क्स ओनली फॉर द आयोनिक बैलेंस, नॉट फॉर द चार्ज बैलेंस। समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए, ये जो एंटायर फेनोमेना हुआ, इस फेनोमेना को अगर हम लोग ग्राफ की तहत समझाना चाहते हैं तो कैसे होगा? इसको अगर हम लोग 0 मिलीवोल्ट कंसीडर करें, इसको अगर हम लोग 0 मिलीवोल्ट कंसीडर करें, एंड यू सी ये 0 है, तो +10, +20, +30, +40, +50, इतना ही चाहिए अपन को। -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90, ये करा। अब आप देखिए, ये ग्राफ को अगर हम लोग सीधी तरह से करेंगे, ये लाइन तो खींचना ही है, तो +10, +20, 30, 40, 50। तो अब देखिए, इसका रेस्टिंग कंडीशन कहां से शुरू होता है? -70 मिलीवोल्ट। तो -70 मिलीवोल्ट से रेस्टिंग कंडीशन शुरू होता है। तो एक न्यूरॉन -70 मिलीवोल्ट से और -55 मिलीवोल्ट पे उसका थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है तो सो इट विल गो फ्रॉम हियर टू हियर, राइट? देन इट विल अंडरगो डिपोलराइजेशन, और फिर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्या? +45, +45, ठीक? तो +45 वाला लेवल पे पहुंचेगा, ये सीधा पहुंच गया एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। फिर रिपोलराइजेशन हो रहा है, और रिपोलराइजेशन होकर लगभग ये नीचे की तरफ गिरेगा, -60, उसी रेंज पे गिरेगा लगभग। ये गिर गया रिपोलराइजेशन में, और अगर गिरे हाइपर पोलराइजेशन, -80 तक पहुंच गया, एंड देन अगेन रेस्टोरेशन टू -70। समझ में? एम आई क्लियर? ये है ग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन। +45 इज द एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है ना, तो डिपोलराइजेशन होते होते वो सीधा खींचेगा अप टू दिस, फिर गिरेगा ना वहां से। गॉट इट? नाउ I told you one thing, that in this entire game the main player is sodium VGC. I told you this. I did not talk of sodium VGC much. मैंने केवल डिपोलराइजेशन वाला सेगमेंट में सोडियम VGC का जिक्र किया था और नहीं किया। देखो अब इसका जिक्र करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सोडियम VGC -55 मिलीवोल्ट दिया है, एक्टिवेशन गेट ओपन, इन एक्टिवेशन गेट दोनों ही खुला है, सोडियम घुसा है अंदर, तो बाहर से अंदर सोडियम घुस गया, ये तो समझ में आता है। तो सोडियम हैज एंटर्ड, डिपोलराइजेशन हुआ। ये क्या है? ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन। दिस इज पोलराइज्ड कंडीशन, दिस इज ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन। कोई डाउट्स? कोई डाउट्स? अब देखो, ये एट द एंड ऑफ डिपोलराइजेशन क्या होगा? एंड ऑफ डिपोलराइजेशन ये बंद हो जाएगा, ये पूरा खुल जाएगा। दिस इज एंड ऑफ डिपोलराइजेशन, सो एंड ऑफ डिपोलराइजेशन, ठीक? अब सवाल यह है, जब रिपोलराइजेशन हो रहा है, हम लोग कहा कि पोटेशियम VGC ओपन होता है, तब सोडियम VGC क्या चुपचाप बैठा रहता है? आंसर इज नो। सोडियम VGC ओरिएंट्स इटसेल्फ। देखिए किस तरह से। सो ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिएगा, ये जो खुला हुआ है, ये धीरे धीरे बंद होने की कोशिश करेगा, और ये बंद ही रहेगा। Am I clear? Am I clear? वन आर्म का मूवमेंट हो रहा है। देखो, जो खुला हुआ था वो बंद होने की कोशिश करेगा, और जो बंद है वो बंद ही रहेगा। दिस इज ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन। ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन, समझ में आया? हाँ, अब देख,
एट द एंड ऑफ रिपोलराइजेशन क्या होगा? एंड ऑफ रिपोलराइजेशन, ये जो बंद हो रहा था वो पूरा बंद होगा, ये भी पूरा बंद है, दोनों इज बंद, दोनों ही बंद। एम आई क्लियर? दोनों ही बंद, ये भी बंद, ठीक। सो दिस वन इज क्लोज्ड एंड दैट वन इज क्लोज्ड, बोथ आर क्लोज्ड। एम आई क्लियर? दिस इज एंड ऑफ रिपोलराइजेशन, दिस इज एंड ऑफ रिपोलराइजेशन, ठीक। अब रेस्टोरेशन करेगा, सो ड्यूरिंग रेस्टोरेशन व्हाट विल हैपन? ड्यूरिंग रेस्टोरेशन व्हाट विल हैपन? ये जो बंद है ये बंद ही रहेगा, और ये जो बंद था ये धीरे 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 ये खुलता रहेगा, धीरे 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 दिस विल ट्राई टू ओपन। समझ में? दिस इज ड्यूरिंग रेस्टोरेशन, and at the end of restoration this असली चीज जो है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, जब तक एक्टिवेशन गेट बंद और इनएक्टिवेशन गेट खुला नहीं होगा तब तक रेस्टोरेशन नहीं होगा, तब तक रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन अचीव नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशन ही चाहिए फॉर द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस टू कम एंड ये होने के लिए। तो ये कंडीशन होना इंपॉर्टेंट है, दैट द एक्टिवेशन गेट हैज टू बी क्लोज्ड एंड द इनएक्टिवेशन गेट हैज टू ओपन, तभी जाके ओरिजिनल रेस्टिंग कंडीशन ऑफ द न्यूरॉन एस्टेब्लिश्ड होगा। एम आई क्लियर? नाउ यू सी, अगर दिस इज फिगर नंबर 1, figure number 2, this is figure number 3, figure number 4, figure number 5 and figure number 6, इतने सारे फिगर्स मैंने दिया। अब इसमें माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, जब तक एक वाला सिचुएशन नहीं आएगा तब तक इवन इफ यू गिव थ्रेशोल्ड स्टिमुलस न्यूरॉन एक्साइट होगा। सो अपार्ट फ्रॉम कंडीशन 1, किसी और कंडीशन पे अगर स्टिमुलस दे रहे हो थ्रेशोल्ड वैल्यू, द न्यूरॉन विल नॉट गेट एक्साइटेड। सो 2 से लेके 6 तक, in all these conditions, even if we give an impulse of threshold value, then also the neuron will not get excited. Then also the neuron will not get excited. So 2 to 6, this entire time period is called the refractory period of a neuron. Therefore, this is called the refractory period. Refractory period क्या है? It is the period in which even if you give a stimulus of threshold value, the neuron will not get excited. तभी तो refractory period है। Got my point? जब न्यूरॉन रीओरिएंट कर रहा है, जब वोल्टेज गेटेड चैनल यहां से लेके ये कंडीशन से शुरू हो, यहां से लेके ये कंडीशन पे लौटेगा, इन ऑल दिस कंडीशंस बीच में किसी भी जगह पे अगर आप स्टिमुलस देते हो, नथिंग विल हैपन टू द न्यूरॉन। समझ में आया? In no other condition it can accept a threshold value. Am I clear? So this is called the refractory period of a neuron. Okay? And this ends the discussion. किरे कैटरपिलर, समझ में आया? की भागोलोक की बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आया? इसका फोटोग्राफ भी सही से खींच के आपको भेज दिया जाएगा। इज इट ओके माय डियर? डिड यू अंडरस्टैंड? ग्राफ को लेके कोई दिक्कत नहीं किसी को? ग्राफ तो इजी है।
देख लीजिए। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या? हम लोगों ने पढ़ा कि रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है। पहला सेंटेंस पढ़ा है ना, a neuron is an are excitable cells because at resting stage the neurons are polarized. Polarized का मतलब क्या है समझा हम लोगों ने। किस कंडीशन पे Na प्लस का परसेंटेज 150 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ICF, K प्लस इन ICF इज 15 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ICF, वो सब भी पढ़ा। इसको छोड़ के ऑर्गेनिक प्रोटीन्स एंड PO4 3- भी है, उसका साइज बड़ा होने से वो पास नहीं कर सकता, समझे? सो देयरफॉर व्हाट हैपेंस इज, जब रेस्टिंग कंडीशन को, और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मतलब द पोटेंशियल एट विच there is no net movement of ions across the membrane, therefore the system is in equilibrium. That potential is equilibrium potential, जिसका value is different for different ions. For sodium it is plus 65 and for potassium it is minus 85. And then I said the ion that dominates, they will try to drag the potential of the region close to its own equilibrium potential. तो अगर सोडियम डोमिनेट कर रहा है in the ICF, in the ECF, then it is dragging the potential of the ECF close to plus 65 millivolt. Whereas अगर पोटेशियम डोमिनेट कर रहा है in the ICF, then it is dragging the potential of the ICF close to minus 85 millivolt. लेकिन कुछ सोडियम है प्रेजेंट, इसीलिए नलिफाई करके minus 70 millivolt is the resting membrane condition of the neuron or depolarized state. That is the value of the ICF. And then I said that दो चीज हो सकता है, one is सब थ्रेशोल्ड वैल्यू दिया जा सकता है या तो थ्रेशोल्ड वैल्यू। सब थ्रेशोल्ड वैल्यू देने से कोई काम नहीं होगा, न्यूरॉन will not get excited because all or none law is applied. But if a number of subthreshold stimulus is given at a very short interval, उसके लैंग्वेज में within the refractory period, then it will add up the stimulus to produce a potential of threshold value and get excited. ये भी बताया मैंने, and that is called summation. फिर I gave a threshold stimulus of minus 55 millivolt, and then the sodium VGC जो initially activation gate बंद था, inactivation gate खुला था, that will slowly activation gate खुल रहा है और inactivation gate बंद हो रहा है. So this condition, and in this condition both the gates are open and therefore there is influx of millions and billions of Na plus, and the potential changes. बाहर हो जाएगा negative comparatively, अंदर हो जाएगा comparative positivity due to Na plus and K plus दोनों, है ना? And that condition is called the loss or reversal of polarity of the membrane, and that is called depolarized condition of the neuron. A depolarized condition of the neuron will result in the generation of action potential whose value is plus 45 millivolt. And then action potential will be established. Action potential will lead to two things: opening of potassium VGC in segment A and opening of sodium VGC in segment B. Action potential below the axolemma जाएगा A to B, and electric current जाएगा from B to A to complete the circuit. And then potassium VGC will open and the efflux of potassium from segment A, and again the change in charge distribution. अंदर हो जाएगा comparative minus, बाहर हो जाएगा comparative plus. वर्ड यूज किया मैंने comparative, है ना? And then segment B में फिर सोडियम आया, तो segment B में depolarization हुआ, segment A में repolarization, segment C resting condition में polarized state. अब फिर restoration होगा because ionic distributions are different but the charge distributions are same. अगर excess K plus चला गया तो hyperpolarized, whether it is polarized or whether it is repolarized or hyperpolarized, इन दोनों कंडीशन में restoration होने के लिए, चार्ज ionic distribution का restoration होने के लिए we need sodium potassium ATPase, and sodium potassium ATPase हर जगह पे काम करता है, इधर भी काम करता है, तो sodium potassium ATPase काम करेगा, है ना? And therefore ultimately restoration of the original condition. तब तक नेक्स्ट वाले में repolarization होगा, तब तक नेक्स्ट वाले में depolarization होगा, है ना? एक्शन पोटेंशियल B to C फ्लो किया, C to B फ्लो किया, इलेक्ट्रिक करंट टू कंप्लीट द सर्किट, है ना? We discussed on this. That's it. Very simple. होता नहीं है, मैक्सिमम लिमिट दिया मैंने, प्लस 45 प्लस 50 उसी रेंज पे, इसीलिए 50 तक ही बनाया मैंने, समझे? ले फोटो, इसका फोटो सही से ले लो, हाँ सही से इसका फोटो ले लो ताकि पूरा आ जाए और ग्रुप में भेज दो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब हटा देते हैं क्योंकि ठीक है।
नाउ वी आर सेंडिंग द फोटोग्राफ ऑफ दिस बोर्ड वर्क. ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू.